Hello students, welcome to the next lecture of complex numbers. In this lecture of complex number, I will be discussing with you people there are special properties, the special terminologies that have been used in the case of complex numbers. In the last lecture, I have discussed how to represent the complex number in the standard form. Now, we are going to start with this one, that is conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number means, let us suppose we have z is equals to a plus iota b as a complex number. You can take an example as z is equals to 3 plus 2 iota. I hope you remember in this complex number a is called as real part of z, also represented as Ra of z, and b is imaginary part of z, also represented by Im dot z. Now, if in question it is required, you need to calculate conjugate of z. Its representation is z bar. First thing, its representation, that is conjugate of z is represented by z bar, and if I do have z is a plus iota b, then a plus iota b whole bar. Now, the result would be this. That is, if z is equals to a plus iota b, then its conjugate would be a minus iota b. In simple words, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करके बताना है तो चेंज द इमेजिनरी पार्ट साइन, राइट? Change the sign of imaginary part. Once you change the sign of imaginary part, you get the result of a conjugate of a complex number. तो ये रहा, हमने एग्जांपल लिखा हुआ था ऑलरेडी. z अगर 2 plus 3 iota है, तो what would be z conjugate? Sorry, 3 plus 2 iota यहाँ पे, तो z conjugate would be 3 minus 2 iota. If z is 3 plus 2 iota, then z conjugate would be 3 minus 2 iota. Now, और एग्जाम्पल को समझ के देखते हैं. सपोज z है मेरे पास -1 -5 iota, then z conjugate would be -1 plus 5 iota. आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. अब कुछ एक बेसिक सी प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करो. वो प्रॉपर्टी कुछ इसी के थ्रू देखिए. सपोज ये z कॉन्जुगेट आ गया, ये भी तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर आप कोई मेरे से ये पूछ ले कि यार z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करो, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है, तो उसका आंसर क्या होगा? -1 -5 आयोटा. -1 -5 आयोटा अगर आप ऑब्जर्व करो, ये तो z ही है, यानी कि क्या आ गया? z. तो ये अपने आप में प्रॉपर्टी बन के आया. तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बन के आई? z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट is equal to z. Z conjugate का conjugate is equal to z. Further, few more properties. दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या एडिशन का कॉन्जुगेट या सब्ट्रैक्शन का कॉन्जुगेट क्या हो? बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है. पहले का कॉन्जुगेट प्लस माइनस दूसरे का कॉन्जुगेट. सिमिलरली, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट. सेम मैनर, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो. इफ z1 upon z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का कॉन्जुगेट होगा, तो हम लिखेंगे z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट. Yes, a condition is z2 should not be equal to 0. Why z2 should not be equal to 0? क्यों? क्योंकि सिंपल से लॉजिक है, हमने पढ़े हुए हैं. Any number divided by 0 क्या रहता है? Non-defined number. So that is why these are the properties, right? So please remember these properties. अब होता ये है कि one is conjugate, जो आपको एडिशन के पॉइंट से समझना है. एक और जो आपको एडिशनल पॉइंट समझना है वो है अबाउट मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर.
फिर इनके कंबाइन हम एग्जांपल्स पे डिस्कशन करेंगे। नाउ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मतलब है? मॉडुलस ऑफ z, suppose you have a complex number z as a plus iota b, then modulus of z is represented by z inside state bars. Modulus of z is represented by z inside state bars and it is equals to real part whole square plus imaginary part whole square. Modulus of z is represented by under root of real part whole square plus imaginary part whole square. बस अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं। सपोज आपके पास z दिया जाता है 3 + 4 आया और आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में मॉड ऑफ z कैलकुलेट करना है, तो मॉड ऑफ z क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेजिनरी पार्ट डज नॉट इंक्लूड आयोटा, राइट? सो दैट्स व्हाई सिर्फ 4 का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर नहीं है। आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है 9 + 16 25, 25 का रूट क्या होता है 5, तो ये आ गया आपके पास 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस। सेम मैनर अगर कोई ये पूछ ले कि 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, तो 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस बताना है तो क्या बन के आएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगेन आप ऑब्जर्व करेंगे 9 + 16 ही तो बन के आएगा, which would be 25, 25 का रूट क्या होता है 5, तो यानी कि z दो एग्जांपल दिए मैंने, दोनों में मॉडुलस कैलकुलेट करके बताया। अगर आपने इन दोनों एग्जांपल में एक ऑब्जर्वेशन की हो, ध्यान से देखिए दोनों एग्जांपल किस फॉर्मेट में थे। लेट्स सपोज इसको मैं z1 मान लेता हूं, ये z1 था, इसको z2 मान लेता हूं। तो z1 और z2 में आपस में क्या रिलेशनशिप था? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, z2 z1 का कॉन्जुगेट था। अब z1 का मॉड और z2 का मॉड तो सेम आया है और हमें पता है कि z2 जो था वो तो z1 का कॉन्जुगेट था। एज z2 इज कॉन्जुगेट ऑफ z1, तो आप सोचिए क्या इसका मतलब ये रिजल्ट नहीं आ गया कि z1 का मॉड और z2 की जगह मैंने लिख दिया z1 के कॉन्जुगेट का मॉड, क्या आया? सेम आया। तो दैट इज प्रॉपर्टी ये कहती है मॉड ऑफ z एंड मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z वुड ऑलवेज बी सेम। और ये क्वाइट लॉजिकल है। देखिए कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन ही तो चेंज होता है और जब हम मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का स्केल करते हैं। तो यार अगर वो उसका स्केल ही होना है तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके आगे पॉजिटिव साइन लिखा है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्केल भी क्या होता है? पॉजिटिव। सो दैट इज व्हाई ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आप ये बेसिक सी प्रॉपर्टी समझ चुके हैं तो अब इसके बेसिस पे कुछ और प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड वुड बी इक्वल टू पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, पहले नंबर का मॉड मल्टीप्लाई बाय दूसरे नंबर का मॉड। सेम मैनर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का मॉड वुड बी इक्वल टू फर्स्ट का मॉड डिवाइडेड बाय सेकंड का मॉड। अगेन ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसके बारे में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि पहले एक प्रॉपर्टी क्या कही मैंने, z का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड एक ही बात होगी। फिर मैंने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड क्या होगा? पहले का मॉड इनटू दूसरे का मॉड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का मॉड क्या होगा? पहले का मॉड इनटू डिवाइड बाय दूसरे का मॉड। फिर से कंडीशन z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पर ध्यान से देखो मैंने z1 प्लस z2 के होल मॉड की कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई है। एक्चुअली वही प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट और डिवीजन पे है सर, तो वो आपको याद रखनी, राइट? तो ये था कॉन्जुगेट
और दिस वाज मॉडुलस ऑफ z। अब फर्दर हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं कि इनमें और क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है। होगा यही कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, आपको उसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना। तो कैसे, लेट्स सी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, वी नीड टू कैलकुलेट कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, एक बेसिक सी बात आपको दिमाग में रखनी है, कॉन्जुगेट पूछा जाए, मॉडुलस पूछा जाए, तो आपको ना एक सिंपल सा चीज करनी है कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, उसके बाद उसके कॉन्जुगेट और मॉडुलस के जो फॉर्मूले हैं वो आप अप्लाई कर दो। अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। आई होप आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, a प्लस आयोटा b। तो इसको और a प्लस आयोटा b का मतलब सिंगल टाइम a प्लस आयोटा b, ये नहीं कि यहां पर भी यहां पर भी। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? मैं पहला स्टेप अगर ऐसे सोचता हूं कि क्यों ना मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले रैशनलाइज करूं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रैशनलाइज वाइट, सो प्लीज मेक इट इन योर माइंड दैट सिर्फ हम अंडर रूट वाली टर्म को नहीं रैशनलाइज करते। रैशनलाइजेशन फॉर इज अ प्रोसेस फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर से ही हटाना चाहता था, तो मैंने विद चेंज ऑफ साइन मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो जरा चेक करिए न्यूमरेटर में क्या होगा। 2 विद एवरी नंबर, so it is -10 plus beta iota, then 3 iota with every number, it is -15 iota plus 12 iota square. In the denominator, a minus b, a plus b, so it is a square minus b square। कुछ ये ऑपरेशन लग जाएंगे। Therefore z is equals to -10, yes, 8 iota minus 15 iota minus 7 iota। iota स्केल कितना होता था, -1। आप इसको बनाएंगे। अब ये -5 का स्केल कितना आया, 25। -4, ये 4 का स्केल 16, iota का स्केल -1, so it is -16। so z is equals to -10 minus 12, it is -22, -7 iota, 25 plus 16 is 41। तो ये आया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। एज ए सेड, आवर फर्स्ट इनिशियल रिक्वायरमेंट इज टू एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, -7 आयोटा अपॉन 41, a प्लस आयोटा b। अब एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गई, अब आपसे जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था उससे आपके शुरू हो जाओ। आपसे पहले स्टेप में क्या पूछा गया है, क्या इसको प्लस माइनस ऐसे लिख के दिखाना जरूरी है? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इसको ऐसे भी सिंपल ऐसे करके भी लिख सकते हैं। नाउ बैक टू दिस, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया पहला कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ z बताना था, रिप्रेजेंटेड बाय z बार। क्या करते थे, इमेजिनरी पार्ट के आगे साइन चेंज कर देते थे। ये माइनस है तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। So it is -22 upon 41 plus 7 iota upon 1। ये आ गया आपका कॉन्जुगेट ऑफ z। फर्दर हमसे ये भी पूछा गया था, मॉडुलस ऑफ z बताओ। So if I need to calculate मॉडुलस ऑफ z, इसका क्या फॉर्मूला है? हमने पढ़ा था अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? रियल पार्ट चेक करो, a इज योर रियल पार्ट, नॉर्मल में रिप्रेजेंट करते थे -22/41, b वाज इमेजिनरी पार्ट -7/41। और मॉडुलस का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट -22/41 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -7/41 का स्क्वायर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, 41 का स्क्वायर वुड बी एलसीएम, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना बन के आएगा हमारे पास 533 अपॉन 41 का स्क्वायर।
So which can be further represented as root 533 upon 41. तो ये आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ Z। आई होप समझ में आया है आप लोगों को कि जब आपसे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्जुगेट पूछा गया है, मॉडुलस पूछा गया है, तो आपका पहला प्राइमरी टारगेट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। वंस यू एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, अप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ Z। इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कुछ ऐसे है कि आपसे कहा जाएगा कि यू नीड टू टेल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमारे पास क्या मतलब है, जरा उसको समझ के देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिंपल से टर्म में बात करें, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आना। तो बताइए 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/4 है ना। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z में से पूछा जाएगा। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Z पावर -1 से। अब Z मेरे पास है a प्लस आयटा b, मुझे कैलकुलेट करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसका मतलब सिंपल है 1/a प्लस आयटा b, बस, यानी कि 1/a प्लस आयटा b। बट जैसे मैंने कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, कुछ भी पूछा जाए आपसे, फाइनल आंसर हैज टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कि एडिशन का रिजल्ट पूछा गया है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट पूछा गया है, कॉन्जुगेट पूछा गया है, तो आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने होते हैं। सिमिलरली विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया तो बस ये लिख के नहीं छोड़ना है। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो न्यूमरेटर में लिखे जाए और सिंगल टाइम प्रेजेंटेशन और रियल पार्ट प्लस आयटा इनटू इमेजिनरी पार्ट, वो आपको बताना होता है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यानी कि क्या करें फिर? जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया है कि हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना है, तो रैशनलाइज कुछ ऐसे। तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा? a माइनस आयटा b, डिनोमिनेटर में a प्लस b एंड a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज a स्क्वायर माइनस b। So it is a minus iota b upon a square माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब जिनको प्रॉपर्टी याद है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता था, आयोटा स्क्वायर वाज -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये रिजल्ट आ गया। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना है तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे इसको करना चाहिए, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट से सोचो तो Z दिया जाएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने ये लिखा, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए प्रोसेस करोगे, तो आपको इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए प्रोसेस करोगे तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये भी किया जा सकता है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लो। इससे क्या है, आपको बनी बनाई स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। तब ये फॉर्मूला क्या है, इसको याद रखने के लिए हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जरा अगर फोकस करो, Z अगर a प्लस आयटा b है तो न्यूमरेटर क्या चीज है? न्यूमरेटर यहां पे जो आया है वो Z कॉन्जुगेट। सिमिलरली अगर और फोकस करें, डिनोमिनेटर क्या चीज है? वो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ Z क्या होता था, ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ Z क्या होता था? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ तो अंडर रूट नहीं है, तो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। यानी कि आप इस तरीके से भी फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा वो हमेशा इस रिजल्ट की फॉर्मेशन में Z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ Z। इसके लिए भी अगर सपोज मुझे क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट करो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेम प्रोसेस से कर देते हैं। सपोज जैसे यही है आपके पास एग्जांपल, Z आपको दिया गया 3 + 4 आया,
मुझे कैलकुलेट करना था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स which is 1 by z which is equal to 1 upon p plus 4 iota. Now the point is its expression in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए अगर मुझे करना है तो क्या कर देना चाहिए? सिंप्लीफिकेशन कैसे फिजिबल है? बाय रैशनलाइजेशन. So what would be numerator? 3 minus 4 iota. What would be denominator? A plus b into a minus b. A square minus b square. तो ये क्या बन के आता है? 3 minus 4 iota. डिनोमिनेटर क्या आएगा? 9. फिर आएगा minus 16 iota square. And what is iota square? It is minus 1. तो ये बन के आएगा 9 plus 16. Numerator was 3 minus 4 iota. So your answer comes out to be 3 minus 4 iota upon 25. ये आ गया आपका multiplicative inverse. Is it in the standard form? No. So express it in the standard form. So it is 3 by 25 minus 4 iota by 25. So now your final expression is also in the standard form and this is your requirement. Right? That's it.